काठमांडू फूड फेस्टिवल 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली के अंदर करी गई प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं और सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी जी। आपको बता दें कि काठमांडू फूड फेस्टिवल की शुरुआत 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक रहेगी और इसमें फैशन शो के साथ साथ इंडियन वेज का भी जो है लुत्फ उठाएंगे। जी हाँ, इंडियन व्यंजन जो है उसका लुत्फ उठाने के लिए अब इस बार सीडी फाउंडेशन की चारू दास जो है वो पहुंच रही हैं अपनी टीम को लेकर काठमांडू में क्या क्या खास रहेगा उस पर ही आज उन्होंने दिल्ली के इरोस होटल में एक प्रेस वार्ता करी, जिसमें उनके साथ उनके जो पार्टनर थे वो लोग भी शामिल हुए। जितने लोग स्पॉन्सर थे उन्होंने बताया कि क्या क्या इस बार खास होगा। जी हाँ, काठमांडू के अंदर जिस तरीके से ये फूड फेस्टिवल जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खास तौर पर अगर देखा जाए खाने पीने के साथ साथ देखा जाए तो किस तरीके से इंडियन व्यापार को लगातार जो है किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो तो बरकरार ही हैं और खूबसूरत हैं, लेकिन व्यापार के माध्यम से किस तरीके से उसमें मजबूती आए उसको लेकर चारू दास जो है काठमांडू पहुंचेंगी। इससे पहले भी चारू दास अलग अलग देशों में जो है वो वहां पर जाकर अपने इंडिया को जो है प्रेजेंट कर चुकी हैं और लगातार इस तरीके का जो सिलसिला है सीडी फाउंडेशन के द्वारा लगातार जारी रहता है। आइए अब सुनवाते हैं कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या क्या किन किन मुद्दों पर जो है चारू दास और उनकी टीम ने बात करी। आइए देखते हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। Than Entrepreneurs Club now, and he's my rock solid guy, you know. मतलब कि जितना मैं निखिल पे चिल्लाती हूँ शायद किसी पे नहीं चिल्लाती, that is because I care the most about him and he's told anything about any trading of export, commodity export that we can from the beginning. So that is also will be promoted, and then there is a trade component to it because like you know CD Foundation के जो programs होते हैं self funded होते हैं. We don't take government funding, so our Indian partners support us. Like we get paid from like today's program is sponsored by Air Communication Balram ji, you know, and we have another sponsor, Maitri India, all spirituality need of person, and then we have Master Stroke, who's our beauty partner and sponsor. Dan has been sponsoring us since ages now, since the beginning of Entrepreneurs Club starting. So what Indian partners, they contribute with their bit and then organize a program, and one of the major part is the trade meet wherein traders from entrepreneurs from India, business people from India get an opportunity to connect with that country and vice versa. That country also gets an opportunity to connect with India. So one of the trade meets which is happening in the festival is on 18th, which is Monday. Festival is inaugurated on 15th of July, which is a Friday. The food festival will have during the inauguration a fashion show, which Sandy will help us. Sandy, he is my go-to fashion guy for CD Foundation. So what he does is he finds me Indian designers and fashion people to connect with. I take them to the countries that I'm visiting, even when the other countries program which I'm doing. Like in September I'm doing UAE festival. So there in UAE will give me designers and Indian designers will be provided by Sandy. So that is how we collaborate. And then there is a component of lifestyle wherein you know beauty and all other partners come in. Good Living Partners is Sitaram Bhartiya. They basically talk about everything good in life, right from health, physical health, mental health, which is आज के दिन बहुत ज़रूरी है. And then there is a bazaar which is happening in the festival. It's a 10 days handicraft bazaar. So basically Indian traders या bazaar handicraft वाले जाएंगे, they'll display, because for a festival to have that feel of India, I need handicraft and colors of India. So that is what the bazaar people do. अपना bazaar लगाते हैं, they sell their product and they give their product so that the hotel can be decorated. So that is there, and then Nepal tourism is helping me with promoting Nepal tourism. So we will have lots of Nepal tourism in the festival. So that is all about the festival. And now about the partners. First we'll have a small audiovisual about Salty, so that
we know what the organization was. फेस्टिवल्स हो रहा है, इसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, किस तरीके से लोग फूड फेस्टिवल मार्की इवेंट है, उसके साथ साथ 5 और इवेंट है, जैसे मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन, ब्यूटी बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कोऑपरेशन, ये 6-7 चीज़ें एक ही साथ आएगा। ये जो डेलीगेशन जा रहा है वो इंटीग्रेट में इंडिया नेपाल रिलेशन प्रमोट करेगा और इंडिया नेपाल जो ट्रेड है तीसरा कंट्री को ले जाएगा। देखा जाए तो किस तरीके व्यापार में कितना फर्क पड़ेगा? देखा जाए तो रिलेशन तो हमेशा ही इंडिया और भारत, नेपाल और भारत के अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस को लेकर देखा जाए तो किस तरीके का? नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, सब कुछ इंडिया के थ्रू करता है, बहुत चीज़ें हो रहा है, बट उसका उनका जो फोकस है 5-6 चीज़ें वो बता दिए हैं, जैसे है हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, टेक्सटाइल्स हुआ, टूरिज्म हुआ, मेडिकल टूरिज्म हुआ, ये 6-7 चीज़ें पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, प्लस फूड फेस्टिवल। मैं रश्मि सचदेवा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर सीडी फाउंडेशन, एंड वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। हम लोग जब से चारू ने फाउंडेशन स्टार्ट करी थी तब से मैं उनके साथ हूँ, और हम लोग कंट्रीज़ में प्रोग्राम करते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। इस बार हम लोग जा रहे हैं नेपाल, फूड फेस्टिवल, कल्चर, फैशन, सब कुछ इंडिया का लेके। वैसे तो इंडिया का खाना और नेपाल का खाना भी बिल्कुल मिलता जुलता है, सो आई एम वेरी श्योर वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे हमारे शेफ्स के हाथ का खाना बना हुआ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाकी सारे सब, इनफैक्ट ऑल ओवर सब लोगों से, कि वो लोग आएँ और हमें ज्वाइन करें और इस फेस्टिवल का एंजॉय करें। नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है, मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। एंड हम लोग इंडियन डेलीगेशन को लेके जा रहे हैं, काठमांडू में फूड फेस्टिवल कर रहे हैं। फूड फेस्टिवल के साथ उसमें ट्रेड होगा, ट्रेड कोलैबोरेशंस होंगे, फैशन शो होगा, लाइफ स्टाइल होगा, इंडियन बाज़ार होगा। एंड होपफुली 10 दिनों के लिए पूरे नेपाल को हम लोग सेलिब्रेशंस में बदल देंगे, इंडियन सेलिब्रेशन में। हैदराबाद ट्राइडेंट से 2 शेफ्स जा रहे हैं, हैदराबादी फूड होगा। एंड फैशन डिज़ाइनर्स दिल्ली से जाएंगे, मेरे को सैंडी मेरे फैशन पार्टनर हैं जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एंड देन ट्रेडर्स जा रहे हैं, मर्चेंट्स जा रहे हैं, बाज़ार के लोग जा रहे हैं। एंड कुछ पार्टनर्स से आज आप मिले हैं जो हमारे साथ नेपाल जाएंगे। एंड बेसिकली पर्पस यही रहता है, कंट्री टू कंट्री कनेक्ट प्रोग्राम्स होती हैं। सीडी फाउंडेशन इसी में स्पेशलाइज़ करता है, एम्बेसीज और मिशंस के साथ काम करता है। हम लोग देश को, लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां वो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लेकर ग्लोबली एक्सपैंड कर सके, क्योंकि सबके पास उतना वक्त नहीं होता, उतना क्षमता नहीं होती, उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि ग्लोबली फिजिकली जाके कर सकें। दे नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस। हमारा बहुत प्रोग्राम बहुत पीपल टू पीपल कनेक्टेड होता है, 500-600 लोग लेके नहीं जाते। हमारा डेलीगेशन का साइज़ 25 से ऊपर कभी होता ही नहीं है। अभी भी जो नेपाल में जा रहे हैं हम लोग 15 लोग जा रहे हैं, यू नो। सो अलग अलग फील्ड से लोग हैं, कुछ टिपिकली बिजनेसमैन हैं, कुछ फैशन के लोग हैं, कुछ लाइफस्टाइल के लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं हैदराबाद से, विजया है, आज आप उनसे मिलेंगे। सो यही है। सर मैंने सिर्फ नेपाल के साथ ही नहीं, मैं बहुत देशों के साथ काम करती हूँ। 2 सालों में करीब 15 देशों के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, वहाँ ट्रैवल करती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ। सो मेरा अपना पर्सनल मानना यही है, किसी कंट्री के साथ अगर आपको कनेक्ट बनाना है तो फूड इज़ द ईजीएस्ट वे। खाना सबसे आसान तरीका है, यू नो, इट इज़ द ईजीएस्ट वे। इट्स बीन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, यू नो। किसी भी देश में जाती हूँ अपने शेफ्स ज़रूर लेके जाती हूँ। आई स्टार्ट विद अ फूड फेस्टिवल सिंपली बिकॉज वो मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है कि मैं लोगों को बुला सकूं, एक जगह कलेक्ट कर सकूं, अपने कंट्री के बारे में बोल सकूं, अपने ट्रेड के बारे में बोल सकूं, अलग अलग कोलैबोरेशन कर सकूं। बट फूड हमेशा सबसे आसान, सबसे सही, सबसे इजी। कोई लैंग्वेज नहीं है। खाना हर कंट्री का अपने कंट्री के बारे में बताता है, अपने कंट्री के लोगों के बारे में बताता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो सीडी पंप से आप कितनी सर अभी हम लोग दुबई से आए हैं। 30 मार्च को हमने दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ हमने फ़ैशन किया, म्यूज़िकल प्रोग्राम किया, ट्रेड मीट किया। एंड वो बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि दुबई एक्सपो था, ऑफ कोर्स इंडियन पेविलियन में किया था, प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ा था। उससे पहले तो कोविड था। लास्ट हमने टूर अफ़गानिस्तान और किर्गिस्तान का किया था कोविड से ठीक पहले। एंड अभी नेक्स्ट हमारा काठमांडू है। काठमांडू के बाद हम यूरोप जा रहे हैं, हम डबलिन जाएंगे, आयरलैंड, हम लोग यॉर्कशायर जा रहे हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल जा रहे हैं, और बीच में ईरान भी करना है। उसका अभी वीज़ा के ऊपर डिपेंड करता है, यूरोप का वीज़ा कितने दिन में होता है, तो उस हिसाब से ईरान भी करना है। मैं भारतीय इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिशियन हूँ और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और देशों के साथ, और इंडिया नेपाल के अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो हमारा काम है पेशेंट की सेवा करना और इसमें दो चीज़ों पे फोकस करना कि उनकी हेल्थ प्रमोट हो और यदि कोई परेशानी है तो उनको सही गाइडेंस मिले। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अब अपना कोशिश करेंगे कि मेडिकल टूरिज़्म और पेशेंट्स जैसे नेपाल के जो मरीज़ हैं उनकी हम मदद कर पाएँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो हम उनके साथ टाई अप करते हैं, जिसमें कि हम मेडिकल लर्निंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च है। तो हमारे ऑलरेडी नेपाल के कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप है और हम मेडिकल स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ के कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ के डॉक्टर्स उनके साथ, और इस समय हम उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम साइंस एडवांसमेंट्स में और रिजल्ट्स पा पाएँ। चारू जी का एक बहुत अच्छा विज़न है जिसमें वो गुड लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें उनके साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ है। वो चाहती हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस सब तक पहुँचे और उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा हमेशा से इंटेंट ये रहा है कि पेशेंट और जनरल पॉपुलेशन के साथ हमेशा बेस्ट चीज़ें रहें, तो हमारे इंस्टीट्यूट जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ में विश्वास रखते हैं, बेस्ट गाइडलाइंस पे विश्वास रखते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट से एक्रेडिटेड हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वही करें जो पेशेंट के हित में है। नेचुरल बर्थ पे हमारा फोकस है, बच्चों की नेचुरल रेजिंग पे हमारा फोकस है, और सिर्फ तभी इंटरवीन करें जब पेशेंट के लिए ज़रूरी है और उसको सही गाइडेंस दें। तो चारूदास की मदद से आज हमें ये मौका मिला है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ मेडिकल सपोर्ट भी दे पाएँ, उनको गाइड भी कर पाएँ और फर्दर कोलैबोरेट करें साइंटिफिक स्टडीज़ एंड रिसर्च स्टडीज़ में। नमस्ते, मेरा नाम विजया है, मैं हैदराबाद से हूँ। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ आर्किट्यूड BIM सर्विसेज। आर्किट्यूड इज़ बेसिकली अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी है। हम यहाँ पे वर्चुअल बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स डेवलप करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सर्विस अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस। हम इसको बहुत इंडियन सेंट्रिक बना रहे हैं ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। So the same reason I have also associated with Charu to represent India on platforms in various countries and develop trade relations. And coming back to our own country, our services are extremely helpful for the builders. उनका profits बढ़ाने के लिए, risk कम करने के लिए, जो भी उनका बिल्डिंग बन रहा है, जैसा हाई राइज बिल्डिंग हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, डेटा सेंटर हो, हम उसको पहले वर्चुअली प्रोटोटाइप बना के देते हैं ताकि उनका प्रोजेक्ट कैसा चलने वाला है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पीरियड, कैसा वो बिल्डिंग को मेंटेन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो सब डेटा हमारा वर्चुअल प्रोटोटाइप में रहेगा। इसका वजह से बिल्डर या कोई कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क वो प्रोजेक्ट में 90% तक कम हो जाएगा। सो देयर वोंट बी एनी स्टॉलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इश्यूज इन द प्रोजेक्ट, बिकॉज यू ऑल नो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड hundreds of thousands of crores of money is stuck due to the stalled projects. जो भी प्रोजेक्ट में होने वाला है हम प्रेडिक्ट करेंगे हमारा वर्चुअल प्रोटोटाइप में, वो मेटावर्स जैसा है। यू कैन इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट किया है yes we have very good clients across India. Today clients के I can't reveal because of the confidentiality. We are working with biggest clients in India. At least 5 big projects we are part of. We have those digital prototypes because it's a security issue that we have the data, right? So that's the reason why we can't reveal the client's name. At the same time, Nepal, there is a huge infrastructure projects coming up, and the same product is also very well suitable for infrastructure projects. Nepal जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर उनको पता चल जाता है कितना खर्चा होता है ऐसा प्रोजेक्ट में और ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है गिवन द अनस्टेबल टेराइन, मतलब स्पेशली द क्वेक्स, उसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके। सो ये सर्विस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर नेपालीज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस डेलीगेशन विच इज़ गोइंग टू नेपाल।